میری تھراپسٹ نے کہا ہے کہ ریکوری میں اور ایونچولی چلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. زندگی اب اتنی بے رحم بھی نہیں ہے, تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں ملیں گی. اچھا, اس سے بڑی بے رحمی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے پاس صرف میری خود اعتمادی بچی تھی, وہ بھی قسمت نے مجھ سے چھین لی. آئی ایم اسٹل ہز وائف. ہماری ڈائیورس ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے. اور یہ سب تم لوگ کا خواب ہے, یہ شادی ختم شد. تو کہا تھا کہ آپ کی سپریشن ہوئی تھی. سیپریشن ہوئی ہے, ڈیورس تو نہیں ہوئی. تم دونوں ہماری تفتیش کیے جا رہے ہو, ہم جا کے پوچھیں نا کہ وہ کیوں آئی ہے, پھر تمہیں بتا دیں گے ہم. کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ تو وہاں ہمارے ساتھ نہیں رکھی, تو یہاں کیسے رہ سکتی ہے؟ تو جائیے پوچھیے. ناشتے کا پوچھ لوں؟ میں ناشتہ بھجوا دیتی ہوں, آپ بس ان سے ان کے یہاں پہ آنے کا ریزن پوچھیے. نہیں بتانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے کیسے آنا ہوا؟ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک یو بیک. تمہیں میرے ساتھ واپس جانا ہی ہوگا. آپ کے لیے چائے بنوائیے, گرم, بالکل جیسی آپ کو پسند ہے. میں آ جاؤں گا بعد میں. ہلو مشک, تم نے کال کی اور پھر کاٹ دی. ارے شاید اس بار بھی تم ریجیکٹ کر دو گی, ہمت نہیں ہو رہی تھی. لیکن بات میرم کی ہے. ہاں, بات میرے دل کی ہوتی تو ریجیکٹ ہی کرتی. میں ان دونوں میں سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. ہوتا ہے. ممی پاپا کے بعد میرے لیے اس دنیا میں سب سے اہم مشعل اور میرم ہے. میں بھی اپنے بھائی کو افسردہ نہیں دیکھ سکتا. تو تم مانتے ہو کہ یہ سب تم نے کیا ہے؟ کوئی بھی میری صفائی دینے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا, سب ضائع. لگتا ہے آج ہماری مجھ بیٹیاں بہت خوش ہے. بھائی ہم تو صرف میرم کی فکر میں کہہ رہے تھے کہ جو بھی ڈیسیژن لے ذرا سوچ سمجھ کے لے. اگر 30 برس پہلے آپ نے چھان بین کر لی ہوتی نا تو طلاق کی نوبت نہ آتی. اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند نہیں آئی تو آپ ہمیں معاف کر دیں. اس کے بعد اس گھر میں ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہیں گے. میں نے اپنے بچوں کو بہت پیار سے پالا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میری آنے والی بہویں بھی ایسے ہی محبت والی ہو تاکہ میرا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے. اتنا ڈرتا ہے آپ سے یہ؟ مسئلہ بیوی کا نہیں ہے, مسئلہ آپ کی حرکتوں کا ہے. بھابھی آپ نے اپنی ساری محبت اپنے بیٹوں پہ لوٹا دی. گلزار کے حصے میں تو آپ کی خالی دہشت آئی ہے. جب بھی میں فون کرتا ہوں کہتا ہوں بھابھی کباب کھانے, یہ بھی ٹوپی کرا دیتا ہے. تو ذرا تم میرم کے آفس میں جاب کرتے ہو؟ جی بالکل, میں اور میرم ساتھ ہی ٹریول ٹیلز میں انٹرنشپ کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے آفر کیا پرماننٹ جاب کے لیے, بٹ میں اپنا ہی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. گڈ بیٹا. میں نہیں چاہتی کہ حیات مجھے. ناظرین, کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں ہر رشتہ ایک نئے امتحان میں ہے. ہر چہرہ ایک راز چھپا رہا ہے اور ہر دل ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس کا کوئی گواہ نہیں. ایپیسوڈ 23 میں جو کچھ ہوا وہ صرف واقعات نہیں تھے, وہ رشتوں کی بنیادوں میں درر تھیں. مشک پہلی بار اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی, اکیلے, بغیر کسی کے سہارے کے, اور حیات اسی وقت وہاں پہنچا. آنکھیں ملے, کوئی لفظ نہ نکلا. ادھر زرق کا رشتہ لے کر پوری فیملی میرم کے گھر پہنچی اور وہاں ایک ایسا سرپرائز تھا جس کا کسی نے اندازہ نہیں کیا تھا. اور سب سے بڑا بم تھا انکل قدیر کی بیوی روحی کا پاکستان میں قدم رکھنا. طلاق ابھی تک فائنل نہیں ہوئی اور وہ خالی ہاتھ نہیں آئی. ٹیزر میں ایک کوٹ سین ہے. کوئی بتانے والا ہے امریکہ سے بھاگ کر اپنی پرانی منگیتر کے گھر میں کون آ بیٹھا؟ یہ دھماکہ کہاں سے ہوگا؟ حیات گلزار اس کہانی کا وہ کردار جو خود اپنی تباہی کا معمار بن گیا ہے. ایپیسوڈ 22 میں اس نے زرق سے کہا تھا مشک اور میں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے, مگر یہ الفاظ اس نے اپنے دل کو یقین دلانے کے لیے کہے تھے, زرق کو نہیں. ایپیسوڈ 23 میں جب وہ مشک کے کمرے میں پہنچا, مشک پہلی بار اپنے پاؤں پر کھڑی تھی. اس لمحے حیات کی آنکھوں میں جو تھا وہ سوہا کے ساتھ کی کوئی خوشی نہیں تھی. وہ درد تھا, وہ پچھتاوا تھا, وہ ایک ایسی محبت تھی جو منگنی کے بعد بھی نہیں مری. اب ایپیسوڈ 24 میں حیات کے سامنے سب سے مشکل سوال ہوگا. مشک کو کھڑے ہوتے دیکھا مگر سوہا کے ساتھ رہنا ہے. یہ تضاد اسے اندر سے توڑ دے گا. ٹیزر میں حیات کا بڑا بھائی مینشن ہوا جس نے مشک کی منگنی کا فنکشن ارینج کیا تھا. کیا وہ پھر منظر پر آئے گا؟ مشک جہازیب اس ڈرامے کی وہ روح جس نے ہر بار گر کے اٹھنا سیکھا ہے. ایپیسوڈ 23 کا سب سے طاقتور لمحہ وہ تھا جب مشک نے کہا اللہ میں تھک گئی ہوں بار بار گرنے سے, اور پھر وہ کھڑی ہو گئی, اکیلے, بغیر کسی کے سہارے کے. جب حیات پہنچا تو مشک نے اسے بھگا دیا. جاؤ اپنی فینسی کا حال پوچھو. الفاظ تلخ تھے مگر آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی تھیں. یہ وہ مشک نہیں جو پہلے تھی, یہ وہ مشک ہے جو درد میں بھی اپنی عزت بچاتی ہے. اب ایپیسوڈ 24 میں مشک کے سامنے دو راستے ہیں. پہلا, عاطر کا پریشر کے شادی جلدی کرو,
फातिर ने कहा था, मैं तुम्हें मुकम्मल और परफेक्ट देखना चाहता हूं, ये मोहब्बत नहीं तवक्को है। दूसरा, हयात की फैमिली घर आई। मुश्क ने देखा, महसूस किया। टीजर की कोट वाली लाइन, मैं सबको बताऊंगी, क्या ये मुश्क बोल रही है? जब कहानी का हर किरदार अपनी जंग लड़ रहा हो तो फैमिली इस आग में घी का काम करती है। गुलनार, हयात की उम्मी, एपिसोड 23 में खुशी से जर्क का रिश्ता लेकर मीरम के घर गईं। मगर घर में रूही का होना और सुहा का ओमे भी साथ चिल्लोंगी वो कहना दोनों ने टेंशन बढ़ा दी। मशाल, जो मुश्क के घर की मुहाफिज है, रोशनी पे ओपो से बात कर रही थी कि घर बेचना ही पड़ेगा वरना ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। ये सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं, ये एक घर के टूटने की बात है। रोशनी पे ओपो जो पहले से हयात के खिलाफ है, एपिसोड 24 में और ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है, खासकर जब उन्हें पता चलेगा कि हयात मुश्क से मिलने आया था। और गुलजार साहिब, मीरम के अबू, जो हयात के बाप के पुराने दोस्त निकले, उनका किरदार एपिसोड 24 में दिलचस्प होगा। क्या ये ताल्लुक जर्क मीरम रिश्ते को आसान बनाएगा? इस ड्रामे में विलन कोई एक चेहरा नहीं मगर अंकल कदीर हर बुराई का सरचश्मा है। एपिसोड 23 में रूही का आना सिर्फ एक सीन नहीं था, ये एक पंडोरा बॉक्स का खिलना था। रूही ने सीधा कहा, तुम चाहते नहीं कि तलाक फाइनल हो और तुम्हारी एसेट्स का आधा हिस्सा मुझे मिले, मतलब कदीर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी छुपा रहा है। टीजर में वो धमाका खेज लाइन है, मैं सबको बताऊंगी कि कैसे तुम अमेरिका से भागकर यहां अपनी पुरानी मंगेतर के घर में आ बैठे हो। और यहां एक नया एंगल। एपिसोड 22 में रूही ने खुद कहा था कि कदीर की पुरानी मंगनी किसी और से थी। मंगनी तोड़ के अमेरिका गए, तो क्या वो पुरानी मंगेतर इस कहानी में पहले से मौजूद है? रोशनी पे ओपो का एक डायलॉग याद करो, 30 बरस पहले भी रूधो के सब्र कर लिया था, ये अपना दर्द है। अगर रूही कोर्ट गई, पूरी फैमिली की इज्जत दांव पर होगी। जर्क, इस कहानी का सबसे सच्चा किरदार, एपिसोड 23 में टूट चुका था। मीरम ने रिश्ता ठुकरा दिया। वजह, जो कुछ हुआ इसमें मेरी और जर्क की गलती भी थी। मैं अकेले खुश नहीं हो सकती। उस जर्क के लिए यह सुनना आसान नहीं था। एपिसोड 24 में जर्क अपने भाई हयात से सीधा पूछेगा, भाई अब क्यों नहीं छोड़ते सुहा को? अब क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? सुहा, जो हयात की फियंसी बन चुकी है, एपिसोड 23 में इसने कहा कि वो मीरम के घर साथ जाएगी। ये पॉजिटिवनेस थी। सुहा जानती है कि हयात का दिल कहीं और है। एपिसोड 24 में सुहा और मुश्क का सामना होने का कवी इम्कान है और वो सीन इस ड्रामे का सबसे एक्सप्लोसिव लम्हा हो सकता है। फातिर की तवक्कुआत और मुश्क की नई हिम्मत, दोनों में तजाद बढ़ रहा है। इस ड्रामे में जो चीज सतह पर नहीं दुखती वही असल कहानी है। पहला राज, मुश्क का हयात से डरना सिर्फ मोहब्बत का सवाल नहीं, ये शनाख्त का सवाल है। मुश्क ने अपनी पूरी जिंदगी अपने कंट्रोल में रखी। हयात पहला बंदा था जिसने इसे अनकंट्रोल्ड फील कराया और इसीलिए वो भागती है, क्योंकि हयात के साथ होना मतलब है अपनी अना छोड़ना। दूसरा राज, मीरम का रिश्ता ठुकराना। क्या सच में मुश्क की वजह से आमीरम के दिल में कोई और दर्द छुपा है? तीसरा राज, हयात का बड़ा भाई। टीजर में कहा गया कि इसने मुश्क की मंगनी का फंक्शन अरेंज किया था, मगर क्यों? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? चौथा राज, कदीर की प्रॉपर्टी। अगर रूही कोर्ट गई तो मुश्क और मशाल का घर भी इस केस में आ सकता है। जिस घर को बचाने के लिए ये दोनों लड़ रही हैं, वही दांव पर लग जाएगा। हर राज एक नए तूफान की तरफ इशारा कर रहा है। अब वो लम्हा जिसका इंतजार था। एपिसोड 24 में सबसे पहले मुश्क और फातिर का कॉन्फ्रंटेशन। फातिर परफेक्ट मुश्क चाहता है, मगर जो मुश्क अब खड़ी हुई है वो फातिर की तवक्को से मैच नहीं करती। इस बार मुश्क खुद फैसला करेगी। दूसरा, रूही कोर्ट सीन। टीजर की वो लाइन, मैं सबको बताऊंगी, रूही की तरफ से आएगी। और जो पुरानी मंगेतर है वो रोशनी पे ओपो है। 30 साल पुराना राज खिलने वाला है और जब खिलेगा मुश्क के घर में तूफान आएगा। तीसरा, हयात का सच। टीजर में हयात की लाइन, मैं चाहता हूं कि विंटरलो की कहानी सच्ची साबित हो। ये एक एतराफ है। मेजर ट्विस्ट, वो बड़ा भाई, क्या इसने मुश्क की मंगनी जान बोझ कर फातिर के लिए अरेंज की थी? क्या फातिर और हयात के बड़े भाई की कोई डील थी? अगर हां, तो फातिर सिर्फ करिंग नहीं, वो एक कैलकुलेटेड प्लेयर है। और मुश्क, जो अभी खड़ी हुई है, एक ऐसा सच सुनने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। क्या जो मोहब्बत इतनी तकलीफ दे वो सच्ची होती है? नाजरीन, विंटरलो की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता एक नए इम्तिहान में है। हर चेहरा एक राज छुपा रहा है और हर दिल एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसका कोई गवाह नहीं। एपिसोड 23 में जो कुछ हुआ वो सिर्फ वाकयात नहीं थे, वो रिश्तों की बुनियादों में दरार थी।
मुश्क पहली बार अपने पांव पर खड़ी हुई, अकेले, बगैर किसी के सहारे के। और हयात इसी वक्त वहां पहुंचा। आंखें मिले, कोई लफ्ज ना निकला। उधर जर्क का रिश्ता लेकर पूरी फैमिली मीरम के घर पहुंची। और वहां एक ऐसा सरप्राइज था जिसका किसी ने अंदाजा नहीं किया था। और सबसे बड़ा बम था अंकल कदीर की बीवी रूही का पाकिस्तान में कदम रखना। तलाक अभी तक फाइनल नहीं हुई और वो खाली हाथ नहीं आई। टीजर में एक कोर्ट सीन है। कोई बताने वाला है अमेरिका से भागकर अपनी पुरानी मंगेतर के घर में कौन आ बैठा। ये धमाका कहां से होगा। हयात गुलजार इस कहानी का वो किरदार जो खुद अपनी तबाही का मेमार बन गया है। एपिसोड 22 में इसने जर्क से कहा था मुश्क और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने, मगर ये अल्फाज इसने अपने दिल को यकीन दिलाने के लिए कहे थे, जर्क को नहीं। एपिसोड 23 में जब वो मुश्क के कमरे में पहुंचा, मुश्क पहली बार अपने पांव पर खड़ी थी। इस लम्हे हयात की आंखों में जो था वो सुहा के साथ की कोई खुशी नहीं थी। वो दर्द था, वो पछतावा था, वो एक ऐसी मोहब्बत थी जो मंगनी के बाद भी नहीं मरी। अब एपिसोड 24 में हयात के सामने सबसे मुश्किल सवाल होगा, मुश्क को खड़े होते देखा मगर सुहा के साथ रहना है। ये तजाद इसे अंदर से तोड़ देगा। टीजर में हयात का बड़ा भाई मेंशन हुआ जिसने मुश्क की मंगनी का फंक्शन अरेंज किया था। क्या वो फिर मंजर पर आएगा। मुश्क जहाजेब इस ड्रामे की वो रूह जिसने हर बार गिर के उठना सीखा है। एपिसोड 23 का सबसे ताकतवर लम्हा वो था जब मुश्क ने कहा, अल्लाह मैं थक गई हूं बार बार गिरने से, और फिर वो खड़ी हो गई, अकेले, बगैर किसी के सहारे के। जब हयात पहुंचा तो मुश्क ने इसे भगा दिया, जाओ अपनी फींसी का हाल पूछो। अल्फाज तल्ख थे मगर आंखें झूठ नहीं बोलती थीं। ये वो मुश्क नहीं जो पहले थी, ये वो मुश्क है जो दर्द में भी अपनी इज्जत बचाती है। अब एपिसोड 24 में मुश्क के सामने दो रास्ते हैं। पहला, फातिर का प्रेशर के शादी जल्दी करो। फातिर ने कहा था मैं तुम्हें मुकम्मल और परफेक्ट देखना चाहता हूं, ये मोहब्बत नहीं तवक्को है। दूसरा, हयात की फैमिली घर आई। मुश्क ने देखा, महसूस किया। टीजर की कोर्ट वाली लाइन, मैं सबको बताऊंगी, क्या ये मुश्क बोल रही है। जब कहानी का हर किरदार अपनी जंग लड़ रहा हो तो फैमिली इस आग में घी का काम करती है। गुलनार, हयात की उम्मी, एपिसोड 23 में खुशी से जर्क का रिश्ता लेकर मीरम के घर गईं। मगर घर में रूही का होना और सुहा का ओमे भी साथ चिल्लोंगी वो कहना, दोनों ने टेंशन बढ़ा दी। मशाल जो मुश्क के घर की मुहाफिज है, रोशनी पेओपो से बात कर रही थी कि घर बेचना ही पड़ेगा वरना ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। ये सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं, ये एक घर के टूटने की बात है। रोशनी पेओपो जो पहले से हयात के खिलाफ हैं, एपिसोड 24 में और ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है, खासकर जब उन्हें पता चलेगा कि हयात मुश्क से मिलने आया था। और गुलजार साहिब, मीरम के अबू, जो हयात के बाप के पुराने दोस्त निकले, उनका किरदार एपिसोड 24 में दिलचस्प होगा। क्या ये ताल्लुक जर्क मीरम रिश्ते को आसान बनाएगा। इस ड्रामे में विलन कोई एक चेहरा नहीं, मगर अंकल कदीर हर बुराई का सरचश्मा है। एपिसोड 23 में रूही का आना सिर्फ एक सीन नहीं था, ये एक पंडोरा बॉक्स का खिलना था। रूही ने सीधा कहा, तुम चाहते नहीं कि तलाक फाइनल हो और तुम्हारी एसेट्स का आधा हिस्सा मुझे मिले, मतलब कदीर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी छुपा रहा है। टीजर में वो धमाका खेज लाइन है, मैं सबको बताऊंगी कि कैसे तुम अमेरिका से भागकर यहां अपनी पुरानी मंगेतर के घर में आ बैठे हो। और यहां एक नया एंगल। एपिसोड 22 में रूही ने खुद कहा था कि कदीर की पुरानी मंगनी किसी और से थी। मंगनी तोड़ के अमेरिका गए, तो क्या वो पुरानी मंगेतर इस कहानी में पहले से मौजूद है। रोशनी पेओपो का एक डायलॉग याद करो, 30 बरस पहले भी रूधो के सब्र कर लिया था, ये अपना दर्द है। अगर रूही कोर्ट गई, पूरी फैमिली की इज्जत दांव पर होगी। जर्क इस कहानी का सबसे सच्चा किरदार एपिसोड 23 में टूट चुका था। मीरम ने रिश्ता ठुकरा दिया। वजह, जो कुछ हुआ इसमें मेरी और जर्क की गलती भी थी। मैं अकेले खुश नहीं हो सकती। उस जर्क के लिए यह सुनना आसान नहीं था। एपिसोड 24 में जर्क अपने भाई हयात से सीधा पूछेगा, भाई अब क्यों नहीं छोड़ते सुहा को, अब क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। सुहा, जो हयात की फियंसी बन चुकी है, एपिसोड 23 में इसने कहा कि वो मीरम के घर साथ जाएगी। ये पॉजिटिवनेस थी। सुहा जानती है कि हयात का दिल कहीं और है। एपिसोड 24 में सुहा और मुश्क का सामना होने का कभी इम्कान है, और वो सीन इस ड्रामे का सबसे एक्सप्लोसिव लम्हा हो सकता है। फातिर की तवक्कुआत और मुश्क की नई हिम्मत, दोनों में तजाद बढ़ रहा है। जर्क इस कहानी का सबसे सच्चा किरदार एपिसोड 23 में टूट चुका था। मीरम ने रिश्ता ठुकरा दिया। वजह, जो कुछ हुआ इसमें मेरी और जर्क की गलती भी थी। मैं अकेले खुश नहीं हो सकती। उस जर्क के लिए यह सुनना आसान नहीं था। एपिसोड 24 में जर्क अपने भाई हयात से सीधा पूछेगा,
بھائی اب کیوں نہیں چھوڑتے سوہا کو؟ اب کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ سوہا جو حیات کی فینسی بن چکی ہے، ایپیسوڈ 23 میں اس نے کہا کہ وہ میرم کے گھر ساتھ جائے گی۔ یہ پوزیسیونیس تھی۔ سوہا جانتی ہے کہ حیات کا دل کہیں اور ہے۔ ایپیسوڈ 24 میں سوہا اور مشک کا سامنا ہونے کا قوی امکان ہے، اور وہ سین اس ڈرامے کا سب سے ایکسپلوسیو لمحہ ہو سکتا ہے۔ فاتر کی توقعات اور مشک کی نئی ہمت دونوں میں تضاد بڑھ رہا ہے۔ اس ڈرامے میں جو چیز سطح پر نہیں دکھتی وہی اصل کہانی ہے۔ پہلا راز، مشک کا حیات سے ڈرنا صرف محبت کا سوال نہیں، یہ شناخت کا سوال ہے۔ مشک نے اپنی پوری زندگی اپنے کنٹرول میں رکھی۔ حیات پہلا بندہ تھا جس نے اسے انکنٹرولڈ فیل کرایا، اور اسی لیے وہ بھاگتی ہے، کیونکہ حیات کے ساتھ ہونا مطلب ہے اپنی انا چھوڑنا۔ دوسرا راز، میرم کا رشتہ ٹھکرانا۔ کیا سچ میں مشک کی وجہ سے میرم کے دل میں کوئی اور درد چھپا ہے؟ تیسرا راز، حیات کا بڑا بھائی۔ ٹیزر میں کہا گیا کہ اس نے مشک کی منگنی کا فنکشن ارینج کیا تھا، مگر کیوں؟ کیا یہ صرف اتفاق تھا؟ چوتھا راز، قدیر کی پراپرٹی۔ اگر روحی کوٹ گئی تو مشک اور مشال کا گھر بھی اس کیس میں آ سکتا ہے۔ جس گھر کو بچانے کے لیے یہ دونوں لڑ رہی ہیں وہی داؤ پر لگ جائے گا۔ ہر راز ایک نئے طوفان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب وہ لمحہ جس کا انتظار تھا۔ ایپیسوڈ 24 میں سب سے پہلے مشک اور فاتر کا کانفرنٹیشن۔ فاتر پرفیکٹ مشک چاہتا ہے، مگر جو مشک اب کھڑی ہوئی ہے وہ فاتر کی توقع سے میچ نہیں کرتی۔ اس بار مشک خود فیصلہ کرے گی۔ دوسرا، روحی کوٹ سین۔ ٹیزر کی وہ لائن میں سب کو بتاؤں گی روحی کی طرف سے آئے گی، اور جو پرانی منگیتر ہے وہ روشنی پہ اوپو ہے۔ 30 سال پرانا راز کھلنے والا ہے، اور جب کھلے گا مشک کے گھر میں طوفان آئے گا۔ تیسرا، حیات کا سچ۔ ٹیزر میں حیات کی لائن، میں چاہتا ہوں کہ ونٹرلو کی کہانی سچی ثابت ہو، یہ ایک اعتراف ہے۔ میجر ٹوئسٹ، وہ بڑا بھائی، کیا اس نے مشک کی منگنی جان بوجھ کر فاتر کے لیے ارینج کی تھی؟ کیا فاتر اور حیات کے بڑے بھائی کی کوئی ڈیل تھی؟ اگر ہاں تو فاتر صرف کرنگ نہیں، وہ ایک کیلکولیٹڈ پلیئر ہے، اور مشک جو ابھی کھڑی ہوئی ہے ایک ایسا سچ سننے والی ہے جو اس کی پوری دنیا ہلا دے گا۔ کیا جو محبت اتنی تکلیف دے وہ سچی ہوتی ہے؟ ناظرین، ونٹرلو کی کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں ہر رشتہ ایک نئے امتحان میں ہے۔ ہر چہرہ ایک راز چھپا رہا ہے، اور ہر دل ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس کا کوئی گواہ نہیں۔ ایپیسوڈ 23 میں جو کچھ ہوا وہ صرف واقعات نہیں تھے، وہ رشتوں کی بنیادوں میں درر تھیں۔ مشک پہلی بار اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، اکیلے، بغیر کسی کے سہارے کے، اور حیات اسی وقت وہاں پہنچا۔ آنکھیں ملے، کوئی لفظ نہ نکلا، ادھر زرق کا رشتہ لے کر پوری فیملی میرم کے گھر پہنچی، اور وہاں ایک ایسا سرپرائز تھا جس کا کسی نے اندازہ نہیں کیا تھا، اور سب سے بڑا بم تھا انکل قدیر کی بیوی روحی کا پاکستان میں قدم رکھنا۔ طلاق ابھی تک فائنل نہیں ہوئی، اور وہ خالی ہاتھ نہیں آئی۔ ٹیزر میں ایک کوٹ سین ہے، کوئی بتانے والا ہے امریکہ سے بھاگ کر اپنی پرانی منگیتر کے گھر میں کون آ بیٹھا؟ یہ دھماکہ کہاں سے ہوگا؟ حیات گلزار، اس کہانی کا وہ کردار جو خود اپنی تباہی کا معمار بن گیا ہے۔ ایپیسوڈ 22 میں اس نے زرق سے کہا تھا، مشک اور میں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، مگر یہ الفاظ اس نے اپنے دل کو یقین دلانے کے لیے کہے تھے، زرق کو نہیں۔ ایپیسوڈ 23 میں جب وہ مشک کے کمرے میں پہنچا، مشک پہلی بار اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ اس لمحے حیات کی آنکھوں میں جو تھا وہ سوہا کے ساتھ کی کوئی خوشی نہیں تھی، وہ درد تھا، وہ پچھتاوا تھا، وہ ایک ایسی محبت تھی جو منگنی کے بعد بھی نہیں مری۔ اب ایپیسوڈ 24 میں حیات کے سامنے سب سے مشکل سوال ہوگا، مشک کو کھڑے ہوتے دیکھا مگر سوہا کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ تضاد اسے اندر سے توڑ دے گا۔ ٹیزر میں حیات کا بڑا بھائی مینشن ہوا جس نے مشک کی منگنی کا فنکشن ارینج کیا تھا۔ کیا وہ پھر منظر پر آئے گا؟ مشک جہازیب، اس ڈرامے کی وہ روح جس نے ہر بار گر کے اٹھنا سیکھا ہے۔ ایپیسوڈ 23 کا سب سے طاقتور لمحہ وہ تھا جب مشک نے کہا، اللہ میں تھک گئی ہوں بار بار گرنے سے، اور پھر وہ کھڑی ہو گئی، اکیلے، بغیر کسی کے سہارے کے۔ جب حیات پہنچا تو مشک نے اسے بھگا دیا، جاؤ اپنی فینسی کا حال پوچھو۔ الفاظ تلخ تھے، مگر آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی تھیں۔ یہ وہ مشک نہیں جو پہلے تھی، یہ وہ مشک ہے جو درد میں بھی اپنی عزت بچاتی ہے۔ اب ایپیسوڈ 24 میں مشک کے سامنے دو راستے ہیں۔ پہلا، فاتر کا پریشر کہ شادی جلدی کرو۔ فاتر نے کہا تھا، میں تمہیں مکمل اور پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ محبت نہیں، توقع ہے۔ دوسرا، حیات کی فیملی گھر آئی۔ مشک نے دیکھا، محسوس کیا۔ ٹیزر کی کوٹ والی لائن میں سب کو بتاؤں گی، کیا یہ مشک بول رہی ہے؟
इस ड्रामे में विलन कोई एक चेहरा नहीं मगर अंकल कदीर हर बुराई का सरचश्मा है। एपिसोड 23 में रूही का आना सिर्फ एक सीन नहीं था, ये एक पंडोरा बॉक्स का खिलना था। रूही ने सीधा कहा, तुम चाहते नहीं कि तलाक फाइनल हो और तुम्हारी एसेट्स का आधा हिस्सा मुझे मिले, मतलब कदीर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी छुपा रहा है। टीजर में वो धमाका खेज लाइन है, मैं सबको बताऊंगी कि कैसे तुम अमेरिका से भागकर यहां अपनी पुरानी मंगेतर के घर में आ बैठे हो। और यहां एक नया एंगल। एपिसोड 22 में रूही ने खुद कहा था कि कदीर की पुरानी मंगनी किसी और से थी। मंगनी तोड़ के अमेरिका गए तो क्या वो पुरानी मंगेतर इस कहानी में पहले से मौजूद है? रोशनी पेओपो का एक डायलॉग याद करो, 30 बरस पहले भी रूधो के सब्र कर लिया था, ये अपना दर्द है। अगर रूही कोर्ट गई, पूरी फैमिली की इज्जत दांव पर होगी। जब कहानी का हर किरदार अपनी जंग लड़ रहा हो तो फैमिली इस आग में घी का काम करती है। गुलनार, हयात की उम्मी, एपिसोड 23 में खुशी से जर्क का रिश्ता लेकर मीरम के घर गईं। मगर घर में रूही का होना और सुहा का ओमे भी साथ चिल्लोंगी वो कहना दोनों ने टेंशन बढ़ा दी। मशाल जो मुश्क के घर की मुहाफिज है, रोशनी पेओपो से बात कर रही थी कि घर बेचना ही पड़ेगा वरना ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। ये सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं, ये एक घर के टूटने की बात है। रोशनी पेओपो जो पहले से हयात के खिलाफ है, एपिसोड 24 में और ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है, खासकर जब उन्हें पता चलेगा कि हयात मुश्क से मिलने आया था। और गुलजार साहिब, मीरम के अबू, जो हयात के बाप के पुराने दोस्त निकले, उनका किरदार एपिसोड 24 में दिलचस्प होगा। क्या ये ताल्लुक जर्क मीरम रिश्ते को आसान बनाएगा? जर्क, इस कहानी का सबसे सच्चा किरदार, एपिसोड 23 में टूट चुका था। मीरम ने रिश्ता ठुकरा दिया। वजह? जो कुछ हुआ इसमें मेरी और जर्क की गलती भी थी, मैं अकेले खुश नहीं हो सकती। उस जर्क के लिए ये सुनना आसान नहीं था। एपिसोड 24 में जर्क अपने भाई हयात से सीधा पूछेगा, भाई अब क्यों नहीं छोड़ते सुहा को? अब क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? सुहा, जो हयात की फियंसी बन चुकी है, एपिसोड 23 में इसने कहा कि वो मीरम के घर साथ जाएगी। ये पॉजिटिवनेस थी। सुहा जानती है कि हयात का दिल कहीं और है। एपिसोड 24 में सुहा और मुश्क का सामना होने का कभी इम्कान है और वो सीन इस ड्रामे का सबसे एक्सप्लोसिव लम्हा हो सकता है। फातिर की तवक्कुआत और मुश्क की नई हिम्मत, दोनों में तजाद बढ़ रहा है। इस ड्रामे में जो चीज सतह पर नहीं दुखती वही असल कहानी है। पहला राज, मुश्क का हयात से डरना सिर्फ मोहब्बत का सवाल नहीं, ये शनाख्त का सवाल है। मुश्क ने अपनी पूरी जिंदगी अपने कंट्रोल में रखी। हयात पहला बंदा था जिसने इसे अनकंट्रोल्ड फील कराया और इसीलिए वो भागती है, क्योंकि हयात के साथ होना मतलब है अपनी अना छोड़ना। दूसरा राज, मीरम का रिश्ता ठुकराना। क्या सच में मुश्क की वजह से? मीरम के दिल में कोई और दर्द छुपा है? तीसरा राज, हयात का बड़ा भाई। टीजर में कहा गया कि इसने मुश्क की मंगनी का फंक्शन अरेंज किया था, मगर क्यों? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? चौथा राज, कदीर की प्रॉपर्टी। अगर रूही कोर्ट गई तो मुश्क और मशाल का घर भी इस केस में आ सकता है। जिस घर को बचाने के लिए ये दोनों लड़ रही हैं, वही दांव पर लग जाएगा। हर राज एक नए तूफान की तरफ इशारा कर रहा है। अब वो लम्हा जिसका इंतजार था। एपिसोड 24 में सबसे पहले मुश्क और फातिर का कॉन्फ्रंटेशन। फातिर परफेक्ट मुश्क चाहता है, मगर जो मुश्क अब खड़ी हुई है वो फातिर की तवक्को से मैच नहीं करती। इस बार मुश्क खुद फैसला करेगी। दूसरा, रूही कोर्ट सीन। टीजर की वो लाइन, मैं सबको बताऊंगी, रूही की तरफ से आएगी। और जो पुरानी मंगेतर है वो रोशनी पेओपो है। 30 साल पुराना राज खिलने वाला है और जब खिलेगा मुश्क के घर में तूफान आएगा। तीसरा, हयात का सच। टीजर में हयात की लाइन, मैं चाहता हूं कि विंटरलो की कहानी सच्ची साबित हो, ये एक एतराफ है। मेजर ट्विस्ट, वो बड़ा भाई, क्या इसने मुश्क की मंगनी जान बोझ कर फातिर के लिए अरेंज की थी? क्या फातिर और हयात के बड़े भाई की कोई डील थी? अगर हां तो फातिर सिर्फ करिंग नहीं, वो एक कैलकुलेटेड प्लेयर है। और मुश्क, जो अभी खड़ी हुई है, एक ऐसा सच सुनने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। क्या जो मोहब्बत इतनी तकलीफ दे वो सच्ची होती है? नाजरीन, विंटरलो की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता एक नए इम्तिहान में है। हर चेहरा एक राज छुपा रहा है और हर दिल एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसका कोई गवाह नहीं। एपिसोड 23 में जो कुछ हुआ वो सिर्फ वाकयात नहीं थे, वो रिश्तों की बुनियादों में दरार थीं। मुश्क पहली बार अपने पांव पर खड़ी हुई, अकेले, बगैर किसी के सहारे के। और हयात इसी वक्त वहां पहुंचा। आंखें मिले, कोई लफ्ज ना निकला। उधर जर्क का रिश्ता लेकर पूरी फैमिली मीरम के घर पहुंची और वहां एक ऐसा सरप्राइज था जिसका किसी ने अंदाजा नहीं किया था।
और सबसे बड़ा बम था अंकल कदीर की बीवी रूही का पाकिस्तान में कदम रखना। तलाक अभी तक फाइनल नहीं हुई और वो खाली हाथ नहीं आई। टीजर में एक कोर्ट सीन है। कोई बताने वाला है अमेरिका से भागकर अपनी पुरानी मंगेतर के घर में कौन आ बैठा। ये धमाका कहां से होगा। हयात गुलजार इस कहानी का वो किरदार जो खुद अपनी तबाही का मेमार बन गया है। एपिसोड 22 में इसने जर्क से कहा था मुश्क और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने, मगर ये अल्फाज इसने अपने दिल को यकीन दिलाने के लिए कहे थे, जर्क को नहीं। एपिसोड 23 में जब वो मुश्क के कमरे में पहुंचा, मुश्क पहली बार अपने पांव पर खड़ी थी। इस लम्हे हयात की आंखों में जो था वो सुहा के साथ की कोई खुशी नहीं थी। वो दर्द था, वो पछतावा था, वो एक ऐसी मोहब्बत थी जो मंगनी के बाद भी नहीं मरी। अब एपिसोड 24 में हयात के सामने सबसे मुश्किल सवाल होगा। मुश्क को खड़े होते देखा मगर सुहा के साथ रहना है। ये तजाद इसे अंदर से तोड़ देगा। टीजर में हयात का बड़ा भाई मेंशन हुआ जिसने मुश्क की मंगनी का फंक्शन अरेंज किया था। क्या वो फिर मंजर पर आएगा। मुश्क जहाजेब इस ड्रामे की वो रूह जिसने हर बार गिर के उठना सीखा है। एपिसोड 23 का सबसे ताकतवर लम्हा वो था जब मुश्क ने कहा अल्लाह मैं थक गई हूं बार बार गिरने से, और फिर वो खड़ी हो गई अकेले, बगैर किसी के सहारे के। जब हयात पहुंचा तो मुश्क ने इसे भगा दिया। जाओ अपनी फींसी का हाल पूछो। अल्फाज तल्ख थे मगर आंखें झूठ नहीं बोलती थीं। ये वो मुश्क नहीं जो पहले थी। ये वो मुश्क है जो दर्द में भी अपनी इज्जत बचाती है। अब एपिसोड 24 में मुश्क के सामने दो रास्ते हैं। पहला, फातिर का प्रेशर के शादी जल्दी करो। फातिर ने कहा था मैं तुम्हें मुकम्मल और परफेक्ट देखना चाहता हूं, ये मोहब्बत नहीं तवक्को है। दूसरा, हयात की फैमिली घर आई। मुश्क ने देखा, महसूस किया। टीजर की कोर्ट वाली लाइन मैं सबको बताऊंगी, क्या ये मुश्क बोल रही है। जब कहानी का हर किरदार अपनी जंग लड़ रहा हो तो फैमिली इस आग में घी का काम करती है। गुलनार हयात की उम्मी एपिसोड 23 में खुशी से जर्क का रिश्ता लेकर मीरम के घर गईं। मगर घर में रूही का होना और सुहा का ओमे भी साथ चिल्लोंगी वो कहना दोनों ने टेंशन बढ़ा दी। मशाल जो मुश्क के घर की मुहाफिज है, रोशनी पेओपो से बात कर रही थी कि घर बेचना ही पड़ेगा वरना ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। ये सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं, ये एक घर के टूटने की बात है। रोशनी पेओपो जो पहले से हयात के खिलाफ है, एपिसोड 24 में और ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है, खासकर जब उन्हें पता चलेगा कि हयात मुश्क से मिलने आया था। और गुलजार साहिब मीरम के अबू जो हयात के बाप के पुराने दोस्त निकले, उनका किरदार एपिसोड 24 में दिलचस्प होगा। क्या ये ताल्लुक जर्क मीरम रिश्ते को आसान बनाएगा। इस ड्रामे में विलन कोई एक चेहरा नहीं मगर अंकल कदीर हर बुराई का सरचश्मा है। एपिसोड 23 में रूही का आना सिर्फ एक सीन नहीं था, ये एक पंडोरा बॉक्स का खिलना था। रूही ने सीधा कहा तुम चाहते नहीं कि तलाक फाइनल हो और तुम्हारी एसेट्स का आधा हिस्सा मुझे मिले, मतलब कदीर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी छुपा रहा है। टीजर में वो धमाका खेज लाइन है मैं सबको बताऊंगी कि कैसे तुम अमेरिका से भागकर यहां अपनी पुरानी मंगेतर के घर में आ बैठे हो। और यहां एक नया एंगल। एपिसोड 22 में रूही ने खुद कहा था कि कदीर की पुरानी मंगनी किसी और से थी। मंगनी तोड़ के अमेरिका गए, तो क्या वो पुरानी मंगेतर इस कहानी में पहले से मौजूद है। रोशनी पेओपो का एक डायलॉग याद करो, 30 बरस पहले भी रूधो के सब्र कर लिया था, ये अपना दर्द है। अगर रूही कोर्ट गई पूरी फैमिली की इज्जत दाव पर होगी। जर्क इस कहानी का सबसे सच्चा किरदार एपिसोड 23 में टूट चुका था। मीरम ने रिश्ता ठुकरा दिया। वजह जो कुछ हुआ इसमें मेरी और जर्क की गलती भी थी। मैं अकेले खुश नहीं हो सकती। उस जर्क के लिए यह सुनना आसान नहीं था। एपिसोड 24 में जर्क अपने भाई हयात से सीधा पूछेगा भाई अब क्यों नहीं छोड़ते सुहा को, अब क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। सुहा जो हयात की फियंसी बन चुकी है, एपिसोड 23 में इसने कहा कि वो मीरम के घर साथ जाएगी। ये पॉजिटिवनेस थी। सुहा जानती है कि हयात का दिल कहीं और है। एपिसोड 24 में सुहा और मुश्क का सामना होने का कवी इम्कान है और वो सीन इस ड्रामे का सबसे एक्सप्लोसिव लम्हा हो सकता है। फातिर की तवक्कुआत और मुश्क की नई हिम्मत दोनों में तजाद बढ़ रहा है। इस ड्रामे में जो चीज सतह पर नहीं दुखती वही असल कहानी है। पहला राज, मुश्क का हयात से डरना सिर्फ मोहब्बत का सवाल नहीं, ये शनाख्त का सवाल है। मुश्क ने अपनी पूरी जिंदगी अपने कंट्रोल में रखी। हयात पहला बंदा था जिसने इसे अनकंट्रोल्ड फील कराया और इसीलिए वो भागती है क्योंकि हयात के साथ होना मतलब है अपनी अना छोड़ना। दूसरा राज, मीरम का रिश्ता ठुकराना। क्या सच में मुश्क की वजह से मीरम के दिल में कोई और दर्द छुपा है। तीसरा राज, हयात का बड़ा भाई। टीजर में कहा गया कि इसने मुश्क की मंगनी का फंक्शन अरेंज किया था।
मगर क्यों? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? चौथा राज, कदीर की प्रॉपर्टी। अगर रूही कोर्ट गई तो मुश्क और मशाल का घर भी इस केस में आ सकता है। जिस घर को बचाने के लिए ये दोनों लड़ रही हैं वही दांव पर लग जाएगा। हर राज एक नए तूफान की तरफ इशारा कर रहा है। अब वो लम्हा जिसका इंतजार था। एपिसोड 24 में सबसे पहले मुश्क और फातिर का कॉन्फ्रंटेशन। फातिर परफेक्ट मुश्क चाहता है, मगर जो मुश्क अब खड़ी हुई है वो फातिर की तवक्को से मैच नहीं करती। इस बार मुश्क खुद फैसला करेगी। दूसरा, रूही कोर्ट सीन। टीजर की वो लाइन मैं सबको बताऊंगी रूही की तरफ से आएगी, और जो पुरानी मंगेतर है वो रोशनी पे उपो है। 30 साल पुराना राज खिलने वाला है, और जब खिलेगा मुश्क के घर में तूफान आएगा। तीसरा, हयात का सच। टीजर में हयात की लाइन, मैं चाहता हूं कि विंटरलो की कहानी सच्ची साबित हो, ये एक एतराफ है। मेजर ट्विस्ट, वो बड़ा भाई, क्या इसने मुश्क की मंगनी जान बोझ कर फातिर के लिए अरेंज की थी? क्या फातिर और हयात के बड़े भाई की कोई डील थी? अगर हां तो फातिर सिर्फ करिंग नहीं, वो एक कैलकुलेटेड प्लेयर है। और मुश्क जो अभी खड़ी हुई है एक ऐसा सच सुनने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। क्या जो मोहब्बत इतनी तकलीफ दे वो सच्ची होती है? नाजरीन, विंटरलो की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता एक नए इम्तिहान में है। हर चेहरा एक राज छुपा रहा है, और हर दिल एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसका कोई गवाह नहीं। एपिसोड 23 में जो कुछ हुआ वो सिर्फ वाकयात नहीं थे, वो रिश्तों की बुनियादों में दरार थी। मुश्क पहली बार अपने पांव पर खड़ी हुई, अकेले, बगैर किसी के सहारे के, और हयात इसी वक्त वहां पहुंचा। आंखें मिले, कोई लफ्ज ना निकला। उधर जर्क का रिश्ता लेकर पूरी फैमिली मीरम के घर पहुंची, और वहां एक ऐसा सरप्राइज था जिसका किसी ने अंदाजा नहीं किया था। और सबसे बड़ा बम था अंकल कदीर की बीवी रूही का पाकिस्तान में कदम रखना। तलाक अभी तक फाइनल नहीं हुई, और वो खाली हाथ नहीं आई। टीजर में एक कोर्ट सीन है। कोई बताने वाला है अमरीका से भागकर अपनी पुरानी मंगेतर के घर में कौन आ बैठा? ये धमाका कहां से होगा? हयात गुलजार, इस कहानी का वो किरदार जो खुद अपनी तबाही का मेमार बन गया है। एपिसोड 22 में इसने जर्क से कहा था मुश्क और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने, मगर ये अल्फाज इसने अपने दिल को यकीन दिलाने के लिए कहे थे, जर्क को नहीं। एपिसोड 23 में जब वो मुश्क के कमरे में पहुंचा, मुश्क पहली बार अपने पांव पर खड़ी थी। इस लम्हे हयात की आंखों में जो था वो सुहा के साथ की कोई खुशी नहीं थी। वो दर्द था, वो पछतावा था, वो एक ऐसी मोहब्बत थी जो मंगनी के बाद भी नहीं मरी। अब एपिसोड 24 में हयात के सामने सबसे मुश्किल सवाल होगा। मुश्क को खड़े होते देखा मगर सुहा के साथ रहना है। ये तजाद इसे अंदर से तोड़ देगा। टीजर में हयात का बड़ा भाई मेंशन हुआ जिसने मुश्क की मंगनी का फंक्शन अरेंज किया था। क्या वो फिर मंजर पर आएगा? हयात गुलजार, इस कहानी का वो किरदार जो खुद अपनी तबाही का मेमार बन गया है। एपिसोड 22 में इसने जर्क से कहा था मुश्क और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने, मगर ये अल्फाज इसने अपने दिल को यकीन दिलाने के लिए कहे थे, जर्क को नहीं। एपिसोड 23 में जब वो मुश्क के कमरे में पहुंचा, मुश्क पहली बार अपने पांव पर खड़ी थी। इस लम्हे हयात की आंखों में जो था वो सुहा के साथ की कोई खुशी नहीं थी। वो दर्द था, वो पछतावा था, वो एक ऐसी मोहब्बत थी जो मंगनी के बाद भी नहीं मरी। अब एपिसोड 24 में हयात के सामने सबसे मुश्किल सवाल होगा। मुश्क को खड़े होते देखा मगर सुहा के साथ रहना है। ये तजाद इसे अंदर से तोड़ देगा। टीजर में हयात का बड़ा भाई मेंशन हुआ जिसने मुश्क की मंगनी का फंक्शन अरेंज किया था। क्या वो फिर मंजर पर आएगा? मुश्क जहाजेब, इस ड्रामे की वो रूह जिसने हर बार गिर के उठना सीखा है। एपिसोड 23 का सबसे ताकतवर लम्हा वो था जब मुश्क ने कहा, अल्लाह मैं थक गई हूं बार बार गिरने से, और फिर वो खड़ी हो गई, अकेले, बगैर किसी के सहारे के। जब हयात पहुंचा तो मुश्क ने इसे भगा दिया, जाओ अपनी फींसी का हाल पूछो। अल्फाज तल्ख थे, मगर आंखें झूठ नहीं बोलती थीं। ये वो मुश्क नहीं जो पहले थी, ये वो मुश्क है जो दर्द में भी अपनी इज्जत बचाती है। अब एपिसोड 24 में मुश्क के सामने दो रास्ते हैं। पहला, फातिर का प्रेशर के शादी जल्दी करो। फातिर ने कहा था मैं तुम्हें मुकम्मल और परफेक्ट देखना चाहता हूं, ये मोहब्बत नहीं तवक्को है। दूसरा, हयात की फैमिली घर आई। मुश्क ने देखा, महसूस किया। टीजर की कोर्ट वाली लाइन, मैं सबको बताऊंगी, क्या ये मुश्क बोल रही है? जब कहानी का हर किरदार अपनी जंग लड़ रहा हो तो फैमिली इस आग में घी का काम करती है। गुलनार, हयात की उम्मी,